definition पढ़ी थी osmosis. And according to osmosis, basically it's a net movement of water molecules from a region of high water potential to a region of lower water potential across a semi-permeable membrane. अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि असल में यहाँ पे जब हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, इसकी डिटेल दे रहे थे, हमने पढ़ा था हायर वाटर पोटेंशियल टू lower water B is 10% salt solution. It's 10% salt solution. Solution A is 30% salt solution. So what does that mean? That A has high potential water potential. Exactly. So I mean, if we take the example of 10% salt solution over here, mean 10 milligram of any solute means salt will be dissolved in 100 ml of water. Is it clear? Energy is solute. It's solute, yes. This one is the amount of solute. When the salt or sugar, whatever you take, then 100 ml of water. 100 ml of water when 10 milligram is added, that will form 10% salt solution. So in case when we are having 30% salt solution, in that case you add 30 milligram per 100 ml of water. So in both of these cases, let's suppose over here we are having 70% water molecules, here 90% water molecules. Is it? Yeah. So on the side where more water molecules are present, B. what will happen? More collisions of molecules will take place. आपको पता है कि जो पानी के molecules होते हैं, liquid जो होता है कोई भी, वो random motion के अंदर होते हैं. Molecules होते हैं वो move करते रहते हैं. तो अगर यहाँ पे molecules इस तरह random move कर रहे हैं तो आपस में collide करते हैं, collisions होते हैं उनके दरमियान. जब उनके दरमियान collisions होंगे, वो collide करेंगे, तो एक pressure create करते हैं. वो एक फोर्स क्रिएट करते हैं उस collisions की वजह से. That is called potential. That's the water pressure or water potential due to the collision of these molecules. अब जिस साइड पे molecules ज्यादा होंगे वहां पे collisions भी ज्यादा होंगे, ठीक? उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा molecules के collisions की वजह से. फिर एक बात याद रखिए, according to the definition, जिस साइड पे collisions ज्यादा हो रहे हैं वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिस साइड पे collisions कम होंगे क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स वहां पे कम हैं तो वहां पे collisions भी कम होंगे. तो पानी के मॉलिक्यूल फिर किस साइड से किस साइड पे मूव करेंगे? जहां पे collision ज्यादा है, जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, to an area where there is less potential. जहां पे पोटेंशियल कम होता है मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर देते हैं. बट दिस मूवमेंट इज across a semi permeable membrane, so there is a condition. Keep in your mind when we compare this osmosis with diffusion. In diffusion we don't have any need to have cell membrane, though the process may take place in the presence of membrane, but membrane presence is not a condition. Clear? But over here there is a condition. This process cannot be carried out in the absence of cell membrane. Is it clear? So now we discuss tonicity of solutions. Let's suppose we take 3 petri dishes. अब हमारे पास ये 3 petri dishes हैं. इन 3 petri dish के अंदर हम 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लेते हैं. यहां पे हम फर्ज कीजिए कि जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, या उसको हम नाम देते हैं
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, या उसको हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो सॉल्यूशन है, अच्छा ये हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है दे आर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक? हम इनके अंदर एनिमल और प्लांट सेल रख देते हैं, ठीक है? एक एनिमल सेल रख दिया और एक प्लांट सेल रख दिया। अब जब ये सेल हमने रख दिया और तकरीबन 20 से 25 मिनट आप सेल इसके अंदर रखते हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास दो एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट सेल के अंदर वाली है और एक सेल के बाहर वाली है। अगर आप सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं कि बाहर वाली एनवायरनमेंट के अंदर वाटर पोटेंशियल लो है, तो वो सॉल्यूशन जो बाहर वाला है वो क्या कहलाएगा? concentrated solution with reference to these cells, right? Means the solution that is present inside this cell, that will be diluted one as compared to the outer environment, which actually shows the concentrated solution, that is hypertonic solution. समझ आ रही बात की? दूसरा सॉल्यूशन जो था, अच्छा अब एक चीज याद रखिए, हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसके अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार होती है वो क्या होती है? ज्यादा। ये सिंपली मैं आपको बता दूं कि सपोज ये वाला जो सॉल्यूशन है 10% सॉल्ट सॉल्यूशन है और बाहर वाला अगर 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है, सिंपल कि अंदर वाला जो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है, बाहर वाले में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा। क्लियर हो गया? इसीलिए ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो आप इसे नाम देंगे हाइपरटोनिक या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल, अब हमारे पास यहाँ पे सेल में अगर 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है, बाहर जो सॉल्यूशन है वो 10% सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो which solution will be hypertonic now? Outer or inner? No sir, inside the cell. The outer solution is 10% salt solution. The solution that is present inside the cell is 30% salt solution. So which one is hypertonic? Inner one, that is present inside the cell. ये दोनों में समझ आ गई? इसीलिए ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है पेट्री डिश के अंदर, ये वाला डाइल्यूट है, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हाइपरटोनिक कहलाता है और ये हाइपोटोनिक है। ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर बाहर भी 30% सॉल्ट सॉल्यूशन और सेल के अंदर भी जो सॉल्यूशन है वो 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है, so in both cases the amount of solute is equal outside and inside the cell, so this solution will be called isotonic solution. Is it clear? अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है? How this process, this tonicity will affect the life of living organisms. So as we have taken two different cells, one of animal and other of plants, when we take these two cells and put them into these three solutions, after 20 to 30 minutes we will observe what changes will take place in all the three petri dishes. So first we start with apparatus A, where we had concentrated solution. जहां पे हमारे पास concentrated solution था, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए जो दोनों सेल आपने रखे हैं, अगर गौर कीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, इसमें हमने क्या पढ़ा था? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सिंपल आप एक बात याद रखिए कि मॉलिक्यूल हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहां मूव करेंगे? हाइपरटोनिक की तरफ, या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से किस तरफ मूव करेंगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, सॉल्यूट कम, रिलेटिवली कम होता है। तो इसमें अब यहां पे देखते हैं,
अब आपको मैंने उनकी वैल्यूज के साथ ऐड इसलिए कर दी कि आपको आसानी हो। अब देखिए बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है। अंदर वाला सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, हाइपरटोनिक, हाइपो, ठीक है। अंदर वाला हाइपो, बाहर वाला हाइपर। डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट के अंदर पानी क्या होता है, ज्यादा होता है, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो पानी के मॉलिक्यूल फिर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया मीन के हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। तो यहां पे फिर आपको जब कभी ऐसे क्वेश्चन आता है आप पूछते हैं जी व्हाट इज द रीजन व्हाई द शेप ऑफ द सेल हैज चेंज्ड, व्हिच प्रोसेस विल टेक प्लेस। आप लिखेंगे as the internal condition of the cell is hypertonic, dilute solution is present, more water potential is present inside the cell. So due to high water potential, water starts moving through semi-permeable membrane Out of this. into the outer solution by using osmosis. ये 3 से 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन इस तरह आता है तो आप इस तरह इसकी डिटेल देंगे कि आपने वहां पे एक तो मेंशन करना है सेल मेम्ब्रेन, अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे। दूसरा आपने वाटर पोटेंशियल को कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में मूव करेंगे, या सिंपली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की मिसाल दे दीजिए। across a semi-permeable membrane by osmosis from high water potential to low water potential will give you 3 marks, क्योंकि आप इसमें 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। ये मैक्सिमम 3, 2, 1 इस तरह मार्क्स में ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में ज्यादा सवाल आते हैं। तो याद रखिए फिर आपने से किस तरह जो है वो उसको रिप्लाई करना है, किस तरह उसको आंसर करना है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे पानी अब बाहर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है। यस, लेकिन अंदर की कंसंट्रेशन कम नहीं है। अंदर देखिए ना, अंदर पानी जो है वो ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। हमने पढ़ा था कि हमेशा मूवमेंट होती है हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ। तो बाहर जो सॉल्यूशन था पेट्री डिश में वो हाइपरटोनिक है क्योंकि वो 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन था वो 10% सॉल्ट सॉल्यूशन था। अब देखिए जब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेटेड से, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये नहीं होता पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद ये होती है कि वहां पे सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। मिला कैसे, आप यहां पे देखिए कि ये जो 30% हमने बाहर वाला सॉल्यूशन रखा है, 30% का मतलब क्या है, 30 मिलीग्राम सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हुआ ना, अंदर 10% सॉल्ट है तो फिर पानी ज्यादा हुआ सेल से। इसीलिए जो पानी है वो बाहर की एनवायरनमेंट में मूव कर जाता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया। पानी यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अंदर है। तो डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट से पानी जो होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में मूव कर जाएगा। ये समझ आई? जी थैंक यू। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि अब इसका इफेक्ट क्या होता है सेल्स पे, एनिमल और प्लांट सेल्स उनकी बॉडीज पे क्या इफेक्ट होगा। अब जैसे पानी उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो गया तो जो एनिमल सेल्स होते हैं ना वो इस तरह स्पाइकी से हो जाते हैं। ये जो स्पाइकी सी कंडीशन है इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है। जब साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा इस कंडीशन को आप नाम देते हैं तो सर जब उनमें से पानी निकल जाएगा तो उनकी बायोकनकेव शेप भी खराब हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की अगर हम देखें तो। आप कभी गौर कीजिए कि अक्सर हमने देखा है कि आप कभी पौधों को देखिए जब वो मुरझाते हैं, कभी फूल देखिए, पौधे जो मुरझा जाते हैं, पत्ते जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं इवन ना, तो उससे पहले तो बिल्कुल वो स्ट्रेट होते हैं। जब उनमें से पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, विल्ट हो जाएंगे वो। इवन के अब देखिए उनमें तो फिर भी सेल वॉल होती है, उनकी शेप फिर भी खराब नहीं होती, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी शेप खराब हो जाती है। जैसे आप देखिए किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है और जब हम देखते हैं कि उसे डायरिया हो जाता है, डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, उसके सॉल्ट्स और वाटर वगैरह जो एक्स्ट्रा लॉस हो जाती है, तो आप देखिए उसकी जो हालत होती है, उसकी जो स्किन होती है वो डेजरी सी हो जाती है, बिल्कुल फ्लैसेड सी हुई होती है
और उसकी असल रीजन क्या होती है कि उसमें से पानी निकल चुका होता है, और जब पानी कम हो जाता है तो फिर डिफ्यूजन वगैरह के प्रोसेस जो होते हैं बॉडी में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यही एक रीजन है कि हमारे जो सेल्स होते हैं जब उनमें से पानी निकल गया, उसके अंदर वो जो एक प्रेशर था पानी का वो खत्म हो गया। प्रेशर ने उसको एक शेप दी हुई थी, जब वो प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो स्पाइकी सा हो जाता है। तो वही जो स्पाइकी सी उसकी कंडीशन आ रही है, दैट कंडीशन और दैट शेप इज कॉल्ड क्रीनेशन। याद रखिए जो एनिमल सेल्स होते हैं वो क्रीनेट होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी है कि अगर आप एक प्लांट सेल को देखते हैं, प्लांट सेल के अंदर एक क्या चेंज आएगी। प्लांट सेल को अगर आप देखिए तो प्लांट सेल जो होते हैं उनकी शेप तो वैसी रहेगी। द मेन रीजन दे हैव cell wall. Cell wall basically their outer membrane. The outermost membrane in plants is their cell wall. अब cell wall जो होता है that is a dead structure. Stiff है, rigid है, जिसकी वजह से उसकी शेप तो खराब नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करेगा, वो भी श्रिंक हो जाएगा, वो इस तरह डीअटैच हो जाता है सेल वॉल से, और उसका वैक्यूल भी जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। दिस कंडीशन इन प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये सेल प्लाज्मोलाइज सेल बन जाता है। प्लांट्स की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, प्लांट्स जब एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर करते हैं, उनमें पानी बहुत ज्यादा जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो इस तरह उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है। साइटोप्लाज्म के श्रिंक करने से ये जो सेल होते हैं थोड़े से डी शेप हो जाते हैं, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको जो कांटेक्ट होता है सेल वॉल से वो अलग हो जाता है। इस श्रिंकेज की कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस और सेल प्लाज्मोलाइज सेल कहलाता है। अब ऐसे जो सेल होते हैं वो अक्सर देखिए फ्लैसिड हो जाते हैं, या जो बिल्डिंग होती है प्लांट्स के अंदर, आप कभी कोई फूल तोड़ लीजिए 3-4 दिन बाद क्या होता है, मुरझा जाता है, विल्ट कर जाता है। रीजन तो उसको पानी नहीं मिल रहा, सेल्स के अंदर से पानी सारा निकल गया है। जब वो निकल जाएगा तो वो बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, विल्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए ये विल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो इन कंडीशंस के अंदर होता है कि पानी उनमें से निकल गया, पानी उनमें से एवापोरेट। इज क्लियर? अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन की थी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने we put two cells again, but in this case the outer environment is hypotonic, mean we are having more water potential outside than the inner environment of the cell. So in that case what happens, water moves high water potential to low. So where to where it will move? Outside to inside. Outside to आदिया, clear? अब देखिए ना, बाहर जो है वो 10% सॉल्ट सॉल्यूशन, सेल के अंदर 30% सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा। जहाँ पानी ज्यादा, जहाँ पोटेंशियल ज्यादा, पानी वहां से दूसरी तरफ मूव करेगा। सो इन दिस केस वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या होता है, जहां पे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो अगेन हमने पहले पढ़ लिया कि हाइपो से हाइपर में जाना ना, तो बाहर क्या है, हाइपो कंडीशन है, अंदर कौन सी कंडीशन है, हाइपर। इसमें ये होता है कि हाइपो से हाइपर के अंदर जो है वो मूवमेंट चल रही होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब हाइपो से हाइपर के अंदर से ज्यादा वाटर मूव करेगा, तो अगेन आप यहां पर यही लिखेंगे, ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट चेंजेस यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस, हमारे पास दो सेल थे, एक था प्लांट सेल और एक एनिमल। सबसे पहले एनिमल सेल को देखते हैं। अब पानी जब एनिमल सेल के अंदर आ रहा है तो outermost membrane is cell membrane, the outermost boundary is cell membrane, और वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और बहुत हाई प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकता। जब पानी सेल के अंदर ज्यादा आ जाएगा तो हाई प्रेशर की वजह से ये क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा बिल्कुल, और इसके मटेरियल लीक कर जाएगा। क्लियर?
जब पानी बहुत ज्यादा अंदर मूव कर गया सेल के, सेल एक्सपैंड, जैसे बैलून को आप देख लीजिए, उसको आप इन्फ्लेट करते जाएं, हवा भरते जाएं, एक कंडीशन आती है, उसके बाद वो क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है। सो सेम इज द केस विद योर सेल, कि सेल के अंदर भी पानी अगर मूव कर रहा है तो मूव करते करते कंडीशन आती है, वो फट जाता है। इसलिए सर तो अब इस सेल को क्या कहेंगे? हाँ जी, वो सेल बर्स्ट हो गया ना, सेल विल बर्स्ट, क्योंकि बस हम आंसर में फिर ये लिखेंगे, हाँ जी, सेल विल बर्स्ट। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट विल हैपन टू द सेल, सो यू विल आंसर सेल कैन नॉट विथस्टैंड हाई प्रेशर, so due to यस high intake of water it will get burst. Clear? Second on यस the सर। plant cell में already there is a vacuum जिसमें सेल सैप होता है। जब पानी इसके अंदर मूव करेगा तो वो वैक्यूम में आ जाता है, जिससे वैक्यूम का साइज इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जैसे वैक्यूम का साइज इंक्रीज करता है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन सेल वॉल। अब जैसे प्रेशर एक्सर्ट होगा सेल वॉल के ऊपर, तो यहाँ पे सेल वॉल तो हार्ड स्ट्रक्चर है ना, डेड स्ट्रक्चर है, ये बर्स्ट नहीं करेगा, बल्कि ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर देगा सेल, इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, सेल थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। तो ये जो फ्लफी सी कंडीशन है सेल की, जिसमें वो अपने साइज से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये सेल हो जाता है टर्जिड। दिस प्रोसेस और दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी ऑफ सेल। मीन यहां पे जो सेल है वो क्या हो गया, टर्जिड हो गया। तो टर्जिड सेल जो होता है वो प्लांट के अंदर में क्या फायदा देता है? सबसे पहला फायदा उनको मैकेनिकल सपोर्ट, उसको फर्म रखने में हो सकता है, फर्म रखता है, इरेक्ट रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जितने भी छोटे प्लांट दिखने में वुड नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा इस तरह इरेक्ट खड़े रहते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल सीधा होते हैं, रोल अप नहीं होते। तो उनको बिल्कुल फर्म रखने में, इरेक्ट रखने में और उनके लीव्स को खुला रखने में, ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, ये जो टर्जिडिटी होती है, जो टर्जिड सेल होता है, ये उनको हेल्प आउट कर रहा होता है। क्लियर हो गया जी? देन तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या होगा, ना पानी अंदर मूव करेगा ना बाहर मूव करेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है वो सेम है, वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ जो है वो सेम है। अच्छा, अगर मैं एक सेल बनाता हूं, सपोज ये एक रूट हेयर सेल है, सेल 1, दिस इज सेल 2, सेल 3। अच्छा, आपने मुझे बताना है जो सेल 2 है उसका वाटर पोटेंशियल when we compare it with cell 1 and cell 3 क्या होगा, किससे कम होगा किससे ज्यादा होगा? सर सेल 1 से कम होगा और सेल 3 से ज्यादा। गुड, सर 1 का ज्यादा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें ऐसा होगा कि जैसे सेल 2 है ना, सॉरी सेल 2 जो है इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो 1 से कम होगा, क्योंकि जो पानी एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से, सबसे पहले पानी वो कहां पे आएगा, सेल 1 में आएगा। तो सेल 1 का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर हाई वाटर पोटेंशियल से पानी सेल 2 में आएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। देन फाइनली ये सेल 3 में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सेल 3 के अंदर आता है तो फिर तीसरे नंबर पर जाके इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा। हमने पढ़ा था सेल 2 का, सेल 2 का वाटर पोटेंशियल 1 से कम है और 3 से क्या है, ज्यादा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और सवाल मैं आपको पूछता हूं,
ये हमारे पास 3 सेल है, फर्ज कीजिए। ये 3 सेल है, इसमें सेल ए है, बी है और सी है। अच्छा, तो इसके बाद आपने मुझे बताना है कि अब इन जो 3 सेल मैंने बनाए हैं इसमें सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका है और सबसे कम ए वाटर। का सर, वो सी का होगा, सी सबसे का ज्यादा ए का होगा, सबसे कम सी का होगा। रीजन? सबसे ज्यादा C ज़्यादा A का। मरियम कह रही है जी सी ज्यादा ए कम। जी, सबसे ज्यादा सी का होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे ज्यादा ए का होगा सर और सबसे कम सी का यू होगा। आर राइट, ए का सबसे ज्यादा होगा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल। व्हाई डोंट यू फॉलो द एरोज? व्हाट द मूवमेंट ऑफ एरो शोज? Water potential. यस एग्जैक्ट, व्हाट इज मूविंग। सो अब यहां पे देखिए कि जो सेल ए है ये सेल बी को भी पानी दे रहे हैं और सेल सी को भी पानी दे रहे हैं। तो जो दोनों को पानी दे रहे हैं सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल तो उसमें हुआ ना। लाइक जैसे ये वाला सेल देखिए, ए वाला सेल किसको पानी दे रहे हैं? बी को। तो वाटर पोटेंशियल इसमें ज्यादा होगा कि इसमें होगा? ए में होगा ना। तो सेम इज द केस विद दिस वन कि यहां पे जो सेल ए है ये दोनों को पानी दे रहे हैं, दोनों एरोस जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल इसका। उसके बाद सेल बी का होगा क्योंकि सेल बी सी को दे रहा है लेकिन सी किसी को भी नहीं दे रहा। आप ये समझ ले- लीजिए कि सेल सी तीनों से पानी रिसीव कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन सबसे एंड पे करेगा ना। अभी तो हमने मूवमेंट को पढ़ना है, तो मूवमेंट को भी बिफोर हैंड पढ़िए ना, आप आफ्टर रिजल्ट्स ना पढ़िए। एट द एंड इसके पास पानी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जब ये पानी किसी को देते हैं पीछे से पानी और ले लेते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले वाटर पोटेंशियल इसका ही ज्यादा होता है हर कंडीशन में। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, आप यहाँ पे जो वर्ड यूज हम कर रहे हैं, मैंने आपको एक वर्ड कहा था ऑस्मो। ऑस्मो मीन वाटर। whenever you use the word osmo mean osmoregulation किडनी में होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका प्रेशर होगा? फिर पानी का प्रेशर। अभी आपने वाटर पोटेंशियल एक वर्ड यूज किया है, पीछे हमने एक वर्ड यूज किया था वाटर पोटेंशियल, हमने डेफिनेशन में यूज किया ऑस्मोसिस की। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब प्रेशर ही मैंने कहा था ना आपको कि हमारे पास जब हमने देखा था एक बीकर के अंदर दो सॉल्यूशंस थे, कॉल्यूजन्स होते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं दे क्रिएट प्रेशर, दैट इज वाटर पोटेंशियल। और चूंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ड्यू टू प्रेशर मूव टुवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल, तो कौन सा प्रेशर उन्हें मूव करवा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी के फ्लो की वजह से जो प्रेशर पैदा होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ये जो पानी मूव कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल तक, ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है ना, तो ये आगे जैसे जैसे जाता जाएगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता चला जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। क्लियर? Sir, for example, in roots, water moves from the soil inside the roots. Is it due to osmosis? Sorry, again. In roots, like water moves from the soil Exactly. to the. It's due to osmosis. Keep in your The mind. concentration किसकी ज्यादा है? जी मैं बताता हूँ अभी, ये देखिए, लाइक अगर ये हमारे पास एक सेल है, रूट हेयर सेल है, राइट? अब इसमें होगा ये कि ये इसका वैक्यूम, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल तो बाहर ही ज्यादा होंगे ना, सेल के अंदर तो ज्यादा नहीं हो सकते। तो पानी जो होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक बात याद रखिए, पानी की मूवमेंट अगर सेल के अंदर हो रही है तो दैट इज ऑस्मोसिस। लेकिन अगर वो कभी आपसे पूछ लेता है कि जाइलम के अंदर कैसे होती है, दैट विल नॉट बी ऑस्मोसिस। कीप इन योर माइंड, वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। देखिए ये पानी एक दफा जब सेल के अंदर आ गया तो रूट हेयर से जो आ रहा है वो ऑस्मोसिस है, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रही है। अब ये जाइलम से पानी ऊपर पत्तों तक जा रहा है, ये जो जाइलम के अंदर मूवमेंट होती है ना, ये ऑस्मोसिस नहीं होती।
कहीं पर भी रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ फोर्सेस होती है, रूट प्रेशर अभी पढ़ेंगे आगे जाके, रूट प्रेशर है या उसके बाद ट्रांसपायरेशन पुल है, कोहेजन एडहेजन, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट एक बात जो याद रखनी है वो ये कि वो ऑस्मोसिस नहीं होती। वो बात की बातें हम देखेंगे कि कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है। जो बात याद रखने वाली है कि जाइलम के अंदर जो वाटर मूव करता है वो ऑस्मोसिस से नहीं करता, वो सिर्फ सेल में कर सकता है, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। देखिए ना, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, अगर यहाँ पे एक और सेल भी है, आगे भी सेल है, तो इन सेल्स में तो ये ऑस्मोसिस ही हो रही है, लेकिन जब ये जाइलम में एंटर हो गया तो फिर ऑस्मोसिस नहीं। इज क्लियर? अच्छा, इसके बाद we start with next topic, that is called active transport. So why it is called active transport? Because it requires energy. Exactly. The last two processes we discussed in the osmosis and diffusion. Both processes do not require energy. That is the reason they are called passive transport. So right now we are going to discuss active transport. Active transport actually requires energy to carry out. That is the reason it is called active transport. One more thing. In passive transports, the materials move from higher concentration to lower concentration down the concentration gradient. But over here they will move against the concentration. So focus on against. So we'll use this word. The first two processes we used down the concentration gradient. The molecules move from high to low. But over here, molecules will move from low concentration to high concentration. So they are moving against the concentration gradient. Is it clear? So first we define it. Then I give you some examples where these processes occur in living organisms. So if we define active transport, movement of atoms, ions or molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration against the concentration gradient, against the concentration gradient by using energy, by using energy. वो तो क्या पानी क्या मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा। इस क्लियर? अच्छा, आज भी हमारा एज यूजुअल कल भी डेफिनेशन पर टाइम खत्म हुआ था, तो इसको फिर फर्दर हम इंशाल्लाह जो है वो कल डिटेल में पढ़ते हैं और इसकी एग्जांपल्स जो है वो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं।